Dear children, today we have to read supplementary reader. This is the second video of The Last Child, written by Mulk Raj Anand. A sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. एक मिठाई विक्रेता या एक हलवाई गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी का हाक लगा रहा था और वह मेले के प्रवेश द्वार के एक कोने में अपनी दुकान को लगाए हुए था। उसके काउंटर के पास लोगों की भारी भीड़ एकत्रित थी, जहां पर अनेक रंग की मिठाइयों को चांदी अथवा सोने की पत्तियों से सजाया गया था। The child stared open-eyed, and his mouth watered for the barfi that was his favorite sweet. वह बच्चा टकटकी लगाकर खुली आंखों से बर्फी की तरफ देख रहा था और उसके मुंह में पानी आ गया था, क्योंकि वही उसकी पसंद की मिठाई थी। I want that बर्फी, he slowly murmured. वह धीमी आवाज में बोला, मैं वह बर्फी चाहता हूँ। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded. किंतु वह पहले से ही आधी बात जानता था कि उसकी इस मांग पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। Because his parents would say he was greedy, क्योंकि उसके माता पिता यही कहते थे कि वह लालची है। So without waiting for an answer he moved on. इसलिए उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह वहां से आगे बढ़ चला। A flower seller hawked a garland of गुलमोहर, a garland of गुलमोहर। एक फूल विक्रेता ने हाक लगाया, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। The child seemed irresistibly drawn. बच्चा अत्यंत सम्मोहकता से आकृष्ट प्रतीत हुआ। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. वह टोकरी की ओर गया जहाँ फूलों का ढेर लगा हुआ था और उसने आधे मन से धीमी आवाज में कहा, मुझे वह माला चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता उसे उन फूलों को खरीदने से मना कर देंगे, क्योंकि वे यही कहेंगे कि ये घटिया हैं। So without waiting for an answer he moved on. इसलिए वह उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना फिर आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक आदमी एक डंडे को जिसमें पीले, लाल, हरे, बैंगनी गुब्बारे उड़ रहे थे पकड़े हुए खड़ा था। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all.
बच्चा उनके रेशमी रंगों के इंद्रधनुष के वैभव से उत्तेजित हो गया और वह उन सबको लेने की प्रबल इच्छा से भर गया। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. किंतु वह अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता उसे कभी गुब्बारे खरीद कर नहीं देंगे, क्योंकि वे यही कहेंगे, क्या तेरी उम्र अब ऐसे खिलौनों से खेलने की रह गई है। So he walked on farther, इसलिए वह आगे बढ़ गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. एक सपेरा एक सांप के आगे बीन बजा रहा था। जो सर्प एक टोकरी में कुंडली मार कर बैठा था, उसका सिर किसी हंस की गर्दन की तरह बड़े ही सुंदर ढंग से झुकाव में उठा हुआ था, जबकि संगीत उसके अदृश्य कानों में अदृश्य झरने की हल्की लहर की तरह जा रही थी। The child went towards the snake charmer. वह बच्चा उस सपेरे की ओर गया। But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther. किंतु यह जानकर कि उसके माता पिता ऐसा बेसुरा संगीत जैसा कि सपेरा बजा रहा था सुनने से मना किए हुए थे, इसलिए वह आगे बढ़ गया। There was a roundabout in full swing. उस समय एक झूला बड़े जोरों पर था। Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. पुरुष, स्त्रियां और बच्चे गोल गोल गति में घूम रहे थे और ठहाकेदार हंसी से चीख रहे थे तथा चिल्ला रहे थे। The child watched them intensely and then he made a bold request. वह बच्चा उन्हें उत्सुकता पूर्वक देखता रहा और तब उसने दृढ़ता पूर्वक प्रार्थना की। I want to go on the roundabout, please father, mother. माताजी, पिताजी, कृपया मुझे झूले पर बैठना है। He turned to look on either side. वह देखने के लिए दोनों तरफ ध्यान दौड़ाया। There was no reply. कोई उत्तर नहीं मिला। तब वह उन्हें देखने के लिए ध्यान दौड़ाया। They were not there ahead of him. वे उसके सामने वहां पर नहीं थे। He looked behind. उसने पीछे देखा। There was no sign of them. वहां उनका कोई चिन्ह नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood crying in real fear, mother, father. उसके सूखे गले से एक भरपूर गहरी चीख निकली और अपने शरीर को एक अचानक झटका देकर वह जहाँ खड़ा था वहाँ से दौड़ा। सचमुच डर कर चीखते हुए, माँ, पिताजी। Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. उसकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। गर्म और भरपूर उसका भीगा हुआ चेहरा डर से कांप रहा था। Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go.
बुरी तरह डरा हुआ वह पहले एक तरफ दौड़ा, फिर दूसरी तरफ दौड़ा, इधर उधर सभी दिशाओं में दौड़ा, न जानते हुए कि कहाँ जाए। मदर फादर ही वेल्ट, माँ पिताजी, यही आवाज देकर वह रो पड़ा। His yellow turban came untied and his clothes became muddy. उसकी पीली पगड़ी खुल गई और उसके कपड़े धूल से लिपट गए। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. कुछ देर तक दौड़ने के आवेश में इधर उधर दौड़ लेने के पश्चात वह हार कर रुक गया, उसका रोना दबकर सिसकियों में बदल गया। At little distance on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. कुछ दूरी पर हरी घास पर वह आंसुओं से धुंधली आंखों से स्त्री और पुरुषों को बातें करते देख सकता था। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. उसने उत्सुकता पूर्वक भड़कीले पीले कपड़ों के धब्बों में देखने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों में जो कि बस हंसने व बात करने के वास्ते ही हंसते व बातें करते प्रतीत होते थे, उसके पिता और माता का नामो निशान नहीं था। He ran quickly again, this time to shrine to which people seemed to be crowding. वह फिर से तेजी से दौड़ा, इस बार मंदिर की ओर जिस तरफ लोग भीड़ लगाते प्रतीत होते थे। Every little inch of his space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little shop lingering. एक एक इंच का स्थान लोगों से भरा पड़ा था, लेकिन वह लोगों की टांगों के बीच से होकर दौड़ता रहा। उसकी हल्की सी सिसकी अभी भी बाकी थी। माँ जी, पिताजी। मदर फादर, माता पिता। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. मंदिर के प्रवेश द्वार के पास तो भी भीड़ बहुत घनी हो गई थी। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। भारी भरकम लोग चमकती हुई हत्यारों जैसी आंखों वाले और मजबूत कंधों वाले एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" बेचारे बच्चे ने उनके पैरों के बीच से रास्ता बनाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसे उनकी क्रूर आवाजाही ने इधर उधर फेंक दिया। वह पैरों के नीचे कुचल गया होता यदि वह अपनी आवाज के उच्चतम तारता तक न चीखा होता। पिताजी, माताजी। A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. उमड़ती भीड़ में से एक व्यक्ति ने उसकी रुलाई सुन ली और बड़ी कठिनाई से झुकते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया। How did you get here, child? बच्चे, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? Whose baby are you? तुम किसके बच्चे हो? The man asked as he steered clear the mass. उस व्यक्ति ने तब पूछा जब वह लोगों से बचते हुए भीड़ के बाहर आया। The child wept more bitterly than ever now and only cried, "I want my mother, I want my father." वह बच्चा पहले की अपेक्षा और जोर जोर से रोने लगा और केवल इतना ही कहता था, "मैं अपनी माँ को चाहता हूँ, मैं अपने पिताजी को चाहता हूँ।"
The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. उस बच्चे को झूले की ओर ले जाते हुए उस व्यक्ति ने उसे शांत करने की कोशिश किया। Will you have a ride on the horse? क्या तुम घोड़े पर चढ़ोगे? He gently asked as he approached the ring. जब वह झूले के पास पहुंचा तो धीमी आवाज में पूछा। The child's throat tore into 1,000 shrieks. उस बच्चे के सूखे गले से हजारों चीखें सिसकियों के रूप में निकली। एंड ही only shouted, और वह केवल इतना ही चिल्लाया, I want my mother, I want my father. मैं अपनी माँ को चाहता हूँ, मैं अपने पिताजी को चाहता हूँ। The man towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. वह व्यक्ति उस स्थान की ओर बढ़ा जहाँ सपेरा उस समय भी झूमते नाग के आगे बीन बजा रहा था। Listen to that nice music, child. बच्चे उस सुंदर संगीत को सुनो। He pleaded. उसने उससे निवेदन किया, अनुरोध किया। But the child shut his ears with his fingers. किंतु वह बच्चा अपनी अंगुलियों से अपने कानों को बंद कर लिया। And shouted his double pitched strain, और अपनी दोगुनी आवाज में चिल्लाया, I want my mother, I want my father. मैं अपनी माँ को चाहता हूँ, मैं अपने पिताजी को चाहता हूँ। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloon should distract the child's attention and quieten him. वह व्यक्ति उसे गुब्बारों के पास ले गया, या सोचते हुए कि रंग चमकीले गुब्बारे उस बच्चे के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे और वह चुप हो जाएगा। Would you like a rainbow colored balloon? क्या तुम इंद्रधनुषी रंग के गुब्बारे को लेना पसंद करोगे? He persuasively asked. उसने बड़े ही विनम्रता पूर्वक उससे पूछा। The child turned his eyes from the flying balloons. उस बच्चे ने अपनी आंखें उड़ते हुए गुब्बारों की तरफ से मोड़ लिया। And just shouted, I want my mother, I want my father. और केवल उसके मुख से यही सिसकी निकल रही थी, मैं अपनी माँ को चाहता हूँ, मैं अपने पिताजी को चाहता हूँ। The man is still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. वह व्यक्ति उस बच्चे को प्रसन्न करने की कोशिश करता रहा। Bore him to the gate, उसे मेले के द्वार के पास लाया जहाँ फूलों की ढेर लगी हुई थी और फूल विक्रेता बैठा हुआ था। Look, can you smell those nice flowers, child? देखो बच्चे, क्या तुम उन फूलों को सूंघना पसंद करोगे? Would you like a garland to put round your neck? क्या तुम अपने गले में एक माला पहनना चाहोगे? The child turned his nose away from the basket and retreated his shaft. I want my mother, I want my father. वह बच्चा फूलों वाली टोकरी के तरफ से अपने नाक को घुमा लिया और फिर से उसके मुख से यही सिसकी निकली, मैं अपनी माँ को चाहता हूँ, मैं अपने पिताजी को चाहता हूँ। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. उस बच्चे के दुखी आवेश को मिठाई के उपहार से आनंदित करने को सोचते हुए व्यक्ति उसे मिठाई की दुकान के पास ले गया। What sweets would you like, child? बच्चे, तुम इसमें से कौन सी मिठाई लेना चाहोगे? He asked. उसने पूछा। The child turned his face from the sweet shop and only shouted, I want my mother, I want my father. बच्चे ने अपना चेहरा मिठाई की दुकान से घुमा लिया
और केवल उसके मुख से यही सिसकी निकलने लगी, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। तो प्रिय छात्रों, आज यह पाठ कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।